Welcome back to my YouTube channel Science for Junior. Myself Sudhir Tiwari. Today we study class 8 chapter light. Light divided into the two parts, reflection of light and refraction of light. We study light into two parts. First part is the reflection of light in the one video, and in the second part refraction of light and our eyes in the second part in the refraction of light. Today we study reflection of light. In the reflection of light, first of all we study some important points are the some terms. First term is the luminous object. What is the luminous object? देखिए जब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट आर द एनी थिंग्स दैट हैव देयर ऑन लाइट, that is called the luminous object. Like example, like the sun is the natural example, and LED, this is the artificial example. Okay, next one is the non-luminous objects. Any object that do not have their own light, that is called the non-luminous object. Non-luminous object example like the board, chair, etc. do not have their own light, that is called the non-luminous object. Next one is the opaque object. Any object that do not transfer light from themselves. कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर से होकर के लाइट इस पार से उस पार नहीं जा सकती, उसको हम लोग बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट. लाइक द वुड, ओपेक ऑब्जेक्ट में क्या आएगा आपका आएगा वुड. नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट वी रीड ट्रांसपेरेंट एंड देन ट्रांसल्यूसेंट. ट्रांसपेरेंट, any object that pass light through them, that is called the transparent object. Example glass. Next one is the translucent object. Translucent object जिसमें से लाइट का कुछ पार्ट जा सके और कुछ पार्ट ना जा सके. like the oiled paper, like oiled paper. जैसे कोई भी पेपर आप ले लें, उसको ऑयल में डिप करा लें, तो उसमें से देखते हैं कि लाइट का कुछ पार्ट बाहर जा सकता है, कुछ नहीं जा सकता है. नेक्स्ट एग्जांपल इज द कलर्ड पॉलीथीन. कलर्ड पॉलीथीन. दिस इज द ट्रांसल्यूशन एग्जांपल ऑफ द ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट वन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. व्हाट इज द रिफ्लेक्शन? First we read what is the reflection. Reflection क्या होता है? What is the reflection? When the light bounce back from a smooth surface, that is called the reflection. When a light bounce back from a smooth surface, called a reflection. Look like example is the reflection of the light from the glass. जैसे आइए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं. जैसे मान लीजिए कि हमने एक मिरर ले लिया, ठीक है, ये हमने मिरर लिया, ये आपका मिरर है. अब इस पे लाइट पड़े, तो इस पे लाइट पड़े तो देखिए रिफ्लेक्शन इसका जाता है उधर की तरफ. अगर जैसे मान लीजिए हम यहां से करके ऐसे दिखाते हैं, देखिए ये ऐसे लाइट पड़ेगा, तो लाइट पड़ने के बाद ये रिफ्लेक्शन आएगा. अब ये क्या है? इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन. कि जो आपका ये मिरर है, ये स्मूथ सरफेस है. स्मूथ सरफेस होने की वजह से जब इस पे लाइट पड़ती है तो लाइट बाउंस बैक होकर के अपने रास्ते पर आ जाती है. और अगर हम कोई एंगल बनाता हुआ रखते हैं तो वो एक एंगल का फॉर्मेशन हो जाता है. जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक मिरर है, दिस इज अ मिरर, ठीक. When the light is the fall on this mirror, then light bounce back in the opposite path. Okay, this is called the reflection. Okay, or this rays is called the incident rays. This ray is called the incidence rays. ठीक है, this is represented by I, and this is reflected rays. Reflected rays represented by R. ठीक है. अब यहां से क्या होगा कि यहां पे अगर हम बीच पे एक लाइन डाल दें, ऐसे लाइन
we form a line, look like this. This line is called the normal, represented by the capital N, represented by capital N. This is called the normal. And this angle, that means this angle is represented by the I, and this angle is represented by the R. This is called the angle of incidence, and this is R is called the angle of the reflection, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो लाइट आपकी यहां से आई और लाइट इधर से चली गई, बीच में एक नॉर्मल डाला। ठीक है, बीच में एक हमने नॉर्मल डाला, और नॉर्मल से अगर हम दोनों का जो एंगल मेजर करते हैं तो एक एंगल को बोलते हैं, पहले वाले को एंगल ऑफ इंसिडेंस, और दूसरे वाले को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहले वाले को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरे वाले को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहीं से आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आता है, यहीं से आपका निकल के आता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में जो आपका फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ इज टेल दैट इंसिडेंट एंगल that means angle I is equal to the reflected angle, and equal to the reflected angle R, angle R. ओके, ये फर्स्ट लॉ हो गया। सेकेंड लॉ स्टेट दैट द इंसिडेंट रेज, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन अ सेम प्लेन, दैट मीन्स I capital N and R, that means reflected ray, इसको जो हम डिफाइन करेंगे तो I नहीं लिखेंगे इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे lie on same plane, ये हो गया आपका सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सेम प्लेन क्या, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि मैथ्स में तीन प्लेन होते हैं, x, y एंड z। ठीक है, तो जैसे ये दोनों, ये एक प्लेन हो गया, ये एक प्लेन हो गया, ये एक प्लेन हो गया, तो ये एक ही प्लेन में लाई करेगा। जैसे एक्स वाई प्लेन ले लिया आपने, तो इसी प्लेन में तीनों लाई करेंगे। इनके प्लेन जो एंगल होता है वो डिफर नहीं करेगा। जैसे अगर हम बताएं तो ये देखो, ये आपका हो गया एक इंसिडेंट रे हो गई, और एक आपकी, ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई, और ये आपकी हो गई रिफ्लेक्टेड रे, और बीच में आपने कर दिया नॉर्मल। तो देखो एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, एक ही प्लेन में। अब अगर मान लीजिए ये ऐसा होता, इस तरह से निकला हुआ होता, तब तो ये दो प्लेन में हो जाता, टू प्लेन में। लेकिन ये चूंकि ऐसे ही है, लाइट इधर से आती इधर चली जाती है, और ये नॉर्मल ऐसे ही स्टैंड होता है, तो दिस इज कॉल्ड द सेम प्लेन। इसी को हम लोग बोलते हैं सेम प्लेन। तो ये आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन खूब पूछा जाता है, और ये दोनों लॉ अलग अलग लाइन रखें कि फर्स्ट लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन एंड द सेकेंड लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन। तो ये बात आपको आई होप कि ये समझ में आया होगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद, ये तो रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, अब इसमें टू टाइप के रिफ्लेक्शन आता है, टू टाइप का रिफ्लेक्शन। अब वो हम लोग देखते हैं। जैसे आपका एक रिफ्लेक्शन होता है, अगर कोई प्लेन सरफेस हो, उस प्लेन सरफेस से हो करके अगर कोई लाइट बाउंस बैक हो करके जाती है, तो वो होता है, एक होता है आपका टूटा फूटा प्लेन हो। जैसे मान लीजिए ये एक प्लेन है, एक ग्लास है, ठीक है, ये आपका सॉरी एक मिरर है, यहां से जब लाइट सीधी आएगी तो ये सीधी जाएगी, ऐसे आएगी तो सीधी जाएगी, ये सीधी आएगी और सीधी जाएगी। इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये हो गया आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब अगर मान लीजिए कोई सरफेस इस तरह से जिगजैग हो, मान लीजिए इस तरह से जिगजैग सरफेस हो, ठीक है, यहां से लाइट आएगी तो एक लाइट पता चला यहां चली गई, ठीक है, दूसरी लाइट इस अपर पार्ट पे चली गई तो हो सकता है ऐसे क्रॉस हो जाए, नेक्स्ट लाइट जो है और डीपर चली गई तो हो सकता है यहां से ऐसे चली जाए। तो अगर इस तरह का जब रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है तो हम इसे बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन या आर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, आर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन, तो कि टू टाइप का रिफ्लेक्शन होगा। और अब जैसे रेगुलर रिफ्लेक्शन है तो इसी को हम लोग
स्मूथ रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि प्लेन से होकर के जाता है, इसलिए इसको हम लोग स्मूथ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये आपको हो गया, आपका हो गया लॉज, हो गए लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन के टाइप्स हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं कि लोकेटिंग इमेज। देखिए अब इमेज का फॉर्मेशन होगा, जैसे एक मिरर है तो मिरर से इमेज का फॉर्मेशन होगा, तो उसकी लोकेशन क्या होगी। जैसे मान लीजिए लेट्स मे बी दिस इज द मिरर, दिस इज द मिरर। यहां पे जितनी डिस्टेंस पे, जैसे मान लीजिए कि हमने एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखा और इसकी जो डिस्टेंस थी 10 सेंटीमीटर थी, ठीक है 10 सेंटीमीटर, तो ये जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो इधर की साइड में 10 सेंटीमीटर पे ही फॉर्मेशन इसका होगा। अगर लेट्स में भी इसकी डिस्टेंस अगर हम 20 सेंटीमीटर कर दें, 20 सेंटीमीटर कर दें, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी वो भी क्या हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं लोकेशन ऑफ द इमेज। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द ओ एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द आई। ठीक है, अब यहां से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्लास 8 के स्टैंडर्ड पे, ये क्लास 9th में भी ऐसे ही पूछा जाता है। डिस्टेंस बिटवीन द, हम आपको लिख लें, इसे आप लिख लेंगे डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज मिरर। दिस इज द मिरर। डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड मिरर, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड मिरर, तो दिस इज द 20 सेंटीमीटर। अभी यहां पे क्या है, 20 सेंटीमीटर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट, मिरर एंड ऑब्जेक्ट, सॉरी मिरर एंड इमेज, मिरर एंड इमेज इक्वल टू द 20 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट एंड इमेज, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज द 20 + 20 दैट मीन्स 40 सेंटीमीटर। इस तरह के न्यूमेरिकल भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इस तरह के न्यूमेरिकल भी क्लास 9th में, क्लास 8th में और 9th में आते हैं। तो ये तो आपकी हो गई पोजीशनिंग ऑफ द इमेज या लोकेटिंग ऑफ द इमेज, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। फिर आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं हम लोग, जैसे ये ऐसे ही बना रहने दे रहे हैं, हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये तो आपने देख लिया। अब इसमें होता क्या है, तो एक चीज और, इसमें होता क्या है कि हम लोग इसमें लेटरल इन्वर्जन देखते हैं। मिरर की एक क्वालिटी और दिखती है कि हम लोगों को लेटरल इन्वर्जन दिखाई देता है। अब लेटरल इन्वर्जन किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने एक आदमी यहां पे बनाया, अब देखिए हम इसको बना रहे हैं, इस तरह से एक फेस बनाया, ठीक है, ये इस तरह से बनाया, ये इस तरह से, ठीक है, इसके हम जैसे ये हमारा रेड कलर का हो गया, ठीक है, और ये हमारा हो गया ब्लैक कलर का। इधर वाला क्या हुआ, ये ब्लैक कलर का हो गया, और इधर वाला जो हैंड आपका है ये रेड कलर का हो गया। ठीक, लेटरल इन्वर्जन में क्या होता है, जब इधर की तरफ हम इसी इमेज को ला करके रखेंगे, तो चूंकि ये तो सर्कुलर है तो ये तो सर्कल रहेगी, ये स्टैंड है तो ये भी स्ट्रेट रहेगा। बट इसमें होगा क्या कि जो रेड कलर वाला पार्ट है वो अब तक इधर था, और रेड कलर वाला पार्ट अब आपका इधर चला जाएगा, रेड कलर वाला पार्ट आपका इधर चला जाएगा, लेफ्ट कलर वाला पार्ट आपका लेफ्ट कलर वाला पार्ट इधर चला आएगा। तो इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि जैसे आप मिरर में सामने खड़े होकर के देखते हैं, आप दायां हाथ उठाइए तो मिरर का बायां हाथ उठता है, मतलब मिरर में जब हम ये वाला हाथ उठाते हैं तो उसका इधर वाला हाथ उठता है, और मिरर में जब हम ये वाला हाथ उठाते हैं तो इसका इधर वाला हाथ उठता है, मतलब वो हमारे आमने सामने रहता है। ठीक है, मिरर का मतलब ये होता है जैसे ये है, ये हमारा मान लीजिए कि ये हमारा हाथ है, ये इधर वाला, तो मिरर में जो दिखेगा वो ऐसे दिखेगा, मिरर में ऐसे नहीं दिखेगा, मिरर में ये हाथ ऐसे नहीं दिखेगा, मिरर में ये जो हाथ है ये ऐसे दिखेगा। दैट मीन्स अगर एक दूसरे के ऊपर रख दें तो ये सुपर इम्पोज हो जाएगा। मिरर में इसको सुपर इम्पोजेबल बोलते हैं। जैसे मिरर में कभी आप मिरर में हाथ ले जाओ और ऐसे रख दो तो मिरर की इमेज हाथ के ऊपर छिप जाती है, तो इसको बोलते हैं, इसी चीज को बोलते हैं मिरर में लैटरल इन्वर्जन, लैटरल इन्वर्जन। और लैटरल इन्वर्जन का आपका बेस्ट एग्जांपल होता है, लैटरल का बेस्ट एग्जांपल होता है जो आपका कार में, बाइक में एम्बुलेंस लिखा होता है, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस लिखा होता है ना, उल्टा लिखा होता है,
और जब हम मिरर में देखते हैं तो वो हमें सीधा दिखाई देता है। तो ये हो गया, ये आपका पार्ट हो गया। इसके अलावा आपको एक वर्ड और मिलेगा आपकी बुक में देखने को, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन का बेस्ट प्लेस होता है जब हम लोग हेयर कटिंग कराने जाते हैं। हेयर कटिंग जो हम लोगों को प्रैक्टिकली दिखाई देता है, हेयर कटिंग, ठीक है। हेयर कटिंग कराने जाते हैं तो आप देखते हैं सामने मिरर लिखा होता है, पीछे लगा होता है, तो पीछे वाले में हमारा, पीछे वाले का रिफ्लेक्शन आगे वाले में दिखता है, तो हमें पीछे का, अपने पीछे वाला पार्ट भी हमें आगे दिखाई देता रहता है। तो ये आपका एग्जांपल हो गया लेटरल इन्वर्जन का। उसके बाद एक वर्ड आता है कि अगर लेट्स में भी कि अगर टू मिरर हैं, अगर मान लीजिए कि टू मिरर हैं, उनके बीच में हम कितना एंगल रखें। जैसे मान लीजिए ये पार्ट है आपका, दो मिरर हैं एक दूसरे से इस तरह से लगा करके रखे गए हैं और उनके बीच में कुछ एंगल, यहां पर कुछ इस तरह से हम बनाएं तो इनके बीच में कुछ एंगल बनता, कोई एंगल थीटा बनता है। तो थीटा एंगल से हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि यहां पर कितनी इमेजेस का फॉर्मेशन होगा, हाउ मेनी इमेजेस फॉर्म बिटवीन द टू मिरर्स। तो उसका, इसका एक फॉर्मूला होता है, n इज इक्वल टू द 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1। यहां से भी आपको एक एग्जाम्पल देखने को कभी कभी मिलता है। तो इसका कैसे निकालेंगे, इफ थीटा इज इक्वल टू द 90 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू द 90 डिग्री, देन n इज इक्वल टू द 360 बाई 90 माइनस 1, दैट मीन्स 4 माइनस 1 इक्वल टू द 3, n इक्वल टू द 3। n क्या है, व्हाट इज द n, नंबर ऑफ इमेजेस, n इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस कि कितनी इमेजेस का फॉर्मेशन यहां पर होता है। तो ये एक आपका एग्जाम्पल आ जाता है। तो ये आपका था रिफ्लेक्शन पार्ट, मिरर का रिफ्लेक्शन पार्ट होता है। अब कुछ हम आपको बता दे रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेजेस, जो इमेजेस मिरर से बनती हैं उनका कैरेक्टर क्या होता है। देखिए जैसे अभी ये आपकी मिरर है, ठीक है, मिरर है, इसमें कुछ कैरेक्टर देखते हैं। जैसे कि आपका ऑब्जेक्ट की जो साइज होगी वही सेम साइज आपकी इमेज की होगी। ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, इसका ऑब्जेक्ट का जितना साइज होगा सेम साइज इमेज का होगा प्लेन मिरर में। दिस इज द क्वालिटी ऑफ द प्लेन मिरर। जितनी लेंथ मिरर से ऑब्जेक्ट की होगी सेम लेंथ सेम डिस्टेंस होगी आपकी मिरर से ऑब्जेक्ट की, ये चीज। दूसरी चीज होता है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ v वेलोसिटी से ले जाते हैं, अगर हम मिरर को, ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ v वेलोसिटी से ले जाते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट इमेज है, इमेज ऑब्जेक्ट की तरफ 2v वेलोसिटी से बढ़ेगी, 2v वेलोसिटी से बढ़ेगी। अगर हम ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ v वेलोसिटी से ले जाएं तो हमारी जो इमेज है वो मिरर की तरफ 2v वेलोसिटी से बढ़ेगी। और एक चीज कि अगर हमें अपनी पूरी इमेज देखनी है, हम अगर किसी मिरर में अपनी पूरी इमेज देखना चाहते हैं, तो जो हाइट है उस हाइट का 2/3 पार्ट हाइट का मिरर की हाइट होनी चाहिए, 2/3 पार्ट हाइट। मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर कोई आदमी 1 मीटर लंबा है तो 2/3 मीटर लेंथ का उसके पास मिरर होना चाहिए, अगर वो सिर से लेकर के पैर तक अपना पूरा इमेज देखना चाहता है तो उसको ये दिखाई देगा। इसमें जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो इमेज कैसी बनती है, ये इमेज बनती है इरेक्ट। अब ये सब वर्ड आगे आएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। इसमें इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है, ये इमेज बनती है इरेक्ट, ठीक है। और ये रियल नहीं होती, वर्चुअल इमेज होती। इरेक्ट बनती है और कैसी होती है, वर्चुअल। वर्चुअल हिंदी में मतलब होता है, इसको बोलते हैं, ये कोई रियल इमेज नहीं होती, ये आभासी होती है, ऐसा फील होता है। जैसे एक होता है फोटो, जैसे कोई भी फोटो हम ले लें तो वो कैसी इमेज होती है, वो रियल इमेज होती है, हम उसको पर्दे पर उतार सकते हैं, कागज पे बना सकते हैं, ये रियल इमेज है, ठीक है। लेकिन अगर हम वर्चुअल इमेज की बात करें, जो शीशे के अंदर इमेज हम लोगों को दिखाई देती है, हम लोग होते थोड़ी ना है, ना ऐसी कोई इमेज होती है, तो वहां पर कोई इमेज नहीं होती, इसलिए उसको वर्चुअल बोलते हैं। जैसे इसका प्रैक्टिकल एक एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल हम देखें
जैसे मान लीजिए लेट्स में भी कि कोई 2 और 3 पर्सन है खड़े हैं, ठीक है, जैसे 2 या 3 पर्सन खड़े हैं। जैसे मान लीजिए कोई आदमी यहां खड़ा है, जैसे उल्ट तिरछा खड़े हो ना, कि यहाँ पे मिरर हो, एक आदमी मतलब आपका यहाँ खड़ा हो कि यहाँ खड़ा हो कि यहाँ खड़ा, अलग अलग खड़े हो, तो तिरछे पे कोई दूसरे को, जैसे यहाँ वाला, ये वाला तिरछा इस वाले को देख रहा होगा, ये वाला एक ही मिरर में, और यहाँ पे जो खड़ा है इसको देख रहा होगा, जो यहाँ ये वाला है इस वाले को देख रहा होगा, बीच वाला अपने आप को देख रहा होगा। तो एक ही मिरर में 3 इमेज कैसे बन रही? इसका मतलब है कि जिस इमेज का फॉर्मेशन होता है वो कोई इमेज रियल नहीं होती है, वर्चुअल होती। वर्चुअल का मतलब होता आभासी होती है। इसीलिए एक ही टाइम पे एक ही मिरर में अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग इमेज हमें दिखाई दे रही होती हैं। समझ में आया? तो इसीलिए इसको बोलते हैं वर्चुअल। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये हो गया, एक आपका यहाँ पे इस तरह से खड़ा हो, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से खड़ा हो, तो अलग अलग पोजीशन होने पर उसको अलग अलग इमेज दिखाई देगी। इसी को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन आपका होता है। फिर इसी तरह से इसका एक एग्जांपल आता है कैलेडियोस्कोप का। कैलेडियोस्कोप का फॉर्मेशन होता है, कैलेडियोस्कोप में मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, और मल्टीपल रिफ्लेक्शन से कैलेडियोस्कोप का फॉर्मेशन होता है। इसका अब तो बहुत कम यूज होता है, पहले टाइम में पनडुब्बी में, जहाज में, या नीचे कोई बैठा है तो पहाड़ के ऊपर से देख करके सैनिक लोग इसका, आर्मी पर्सन्स इसका यूज करते थे। तो इस तरह से कैलेडियोस्कोप का यूज होता था। तो ये आपका चैप्टर था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आई होप कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसको आप अपनी नोटबुक में, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।